Jai Hind. Jai Hind, with immense pleasure and great honor, I Dr. Nisha Rana, in charge IPR Cell, Swami Vivekananda Subharati University, Meerut, and member AFTEFS Society, warmly welcome all distinguished dignitaries, eminent academicians, scientists, researchers, faculty members, students, industry experts, and participants from across the country to the day 8th of Krishi Manthan, the 21-day summer training program. This unique academic initiative is being jointly organized by Rani Lakshmibai Central Agriculture University, Jhansi, University of Agriculture Sciences, Raichur, Swami Vivekanand Subharati University, Meerut, GD Goenka University, Gurugram, Sant Girira Guru Vishwavidyalaya, AFTEFS Society, and Vital Biotech Education Group. This program has been started from 1st June 2026 and will be continued till 21st June 2026, focusing on agriculture, horticulture, forestry, sustainability, and entrepreneurship, modern technology, and skill development. Now, moving forward, it's my privilege to introduce our speaker, Dr. Sudhanand Prasad Lal. Dr. Sudhanand Prasad Lal is currently Officer in Charge, Agriculture Technology, Information Center, Directorate of Extension Education, RPCAU, PUSA, MOA, FW, Government of India. He pursued his BSc AG from CSA University, Kanpur in 2012 and received Chancellor Gold Medal. He did his MSc from ICR National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana in 2014 and was awarded Merit Certificate in the Social Science and Management Group. He did his PhD in Agriculture Extension Education on 12th March 2018 and received PhD Best Thesis Directorate Gold Medal at ICR NDRI, Karnal from Dr. T.M. who was the Secretary of DARE and Director General ICR, Krishi Bhavan, New Delhi. He is a recipient of NTS, BSc, JRF, MSc, SRF in PhD. He is a recipient of Certificate of Excellency Award from Elsevier Research Academy, Amsterdam, Netherlands. He has written more than 106 research papers, 3 policy papers, 5 review papers, 4 short communication, 10 book chapters, and more than 50 book chapters in various level of publications and 60 most popular article. He holds 2 patents on his name. He was invited as an expert from Time Higher Education Academic Reputed Survey in partnership with Elsevier for 2023 Times Higher Education World Reputation Ranking and 2025 World University Ranking. He has been received many awards and citation at various level. Now, I would like to request Dr. Surendra Prasad Lal to please deliver his lecture. Thank you, Dr. Nisha Rana ma'am, and the organizer from Rani Lakshmibai, and more importantly to Jitendra Mehta sir, who is organizing and instrumental in organizing this event. And definitely it would be an insightful session for all. And before that, I want to give the quick recapitulation that what I am going to present. So, 3 events in a row within a year. 3 events in a row within a year. Last year we have witnessed Viksit Krishi Sankalp Abhiyan. हम लोगों ने देखा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान, और previous month मई पूरा छाया रहा था, and it was occupied by that judicious use of fertilizer campaign, and we can see it in the slide also. We had organized one event regarding that. Campaign on balanced use of fertilizer. Or now the 3rd event that has been organized from 1st of June, that is Khet Bachao Abhiyan. That means Save the Farm campaign. So 3 campaign I have took the name. Viksit Krishi Sankalp Abhiyan first, and campaign on balanced use of fertilizer second, and 3rd one that was launched 1st of June. That means I think, sir, this winter school was started from 1st of June, right? Okay. So you are very lucky, sir. On the same day, Government of India has launched Khet Bachao Abhiyan, means Save the Farm campaign. So you can imagine the importance and how the convergence is going on. Means Government of India is launching the program, and I am with the data
to your summer school, sir. So this is the importance that how everything should go parallel together so that we can achieve a target. Otherwise, everything will not go in tandem and the thing will have to. तो लेट्स बिगिन. तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं. आई विल ऑल्सो टेक द केस स्टडी दैट आई वाज पार्ट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंटल इन विकसित कृषि संकल्प Save the Farm campaign also, as well as campaign on balanced use of fertilizer also. So let's see and let's move one by one. Sir, sometimes you are mute, sir. So sometimes what happens when I move slide one by one, it gets stuck. So if it gets stuck, I will tell you that I am in this slide. Then I will move manually one by one. So right now I'm converting into slide mode. If I get stuck, if my slide gets stuck, please let me know. Okay. Sure, sir, sure. Usually it happens in Google Meet, not in Zoom. So I hope that there will be no such technical glitches here. So let's move, sir. So this is my first slide, and you can see in the slide Viksit Krishi Sankalp Abhiyan current status and future prospect, and it has many wings. We have talked about campaign on balanced use of fertilizer, Khet Bachao Abhiyan. In the words of our agriculture minister AM, that is Shivraj Singh Chauhan ji, he said that our agriculture is in ICU. हमारी जो agriculture है वो ICU में भर्ती है. So you can see that why intensive care is needed, because I had done my research in Punjab and Haryana, and I know very well that how people are lacking good quality soil, good quality water, and good quality fertilizer also. And if you remember the technological trinity in Green Revolution, these were the three technological trinity. अगर कोई पूछे कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया, तो इसी तीनों का नाम लेना. अच्छा वाटर, अच्छा फर्टिलाइजर्स, सीड तो डेफिनेटली आ ही गया, एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रिनिटी, सीड, वाटर एंड fertilizers, right? So Indian agriculture diverse agro climatic zone, we know that, and current fertilizer security sustains. We know that at the time of war, from where we produce the import the potassium. We will see in the coming slide that we bring potassium 100% from import, means we are 100% dependent on other countries. Likewise, for potassium also, India only 20% production, 80% we import. And similar is for urea. We are not producing 100% of the urea. And that's why this year government of India is facing a urea crisis. And that's why we have an alternative called ammonium sulfate. Ammonium sulfate gives sulfur also, and it is important. So at least one bag must be replaced by ammonium sulfate. And that are need-based, timely, and location-specific. Last year, we had organized it in Kharif season, and strategic direction and responsive agriculture extension in India. So we will focus on that, and what we have achieved, where we are lacking, we will track everything. And I'm happy that, one second. More than 89 participants had joined. Let me read the chat. Sir, Hindi and English medium. Harish Chandra is saying, okay, no problem. I will speak. So if you can't comprehend my English, you can interrupt and speak. And after every 15 to 20 minutes, I will read your message. If there is any doubt, I will get back to you. So don't worry about it. I will be there up to 8 if you wish. Okay. So we can see that this is the thing. One second. Last year, it was launched on 29th of May 2025, and it was for 15 days. And we can see that our agriculture minister is sitting at the center, Shivraj Singh Chauhan ji, and ML Jat sir, who is Director General of ICR right now, is also sitting beside him.
So Viksit Sankalp Abhiyan resolves to make Indian agriculture mainstay of Viksit Bharat. We know that government of India has resolved that Viksit Bharat, we have to achieve the dream of 2047. Up to 2047, we have to be Viksit Bharat. And how many years is remaining? Only 21 years. It is not very distant dream. 21 years is a very small time period. And we are still developing countries. And if we will see the per capita income of India, anyone can tell per capita income of Indians? It is just $3,100. We are behind every country, Malaysia, Thailand, China, our Asian countries also. So we have to work hard. We may be the fifth largest economy, but per capita income, it is very less, and we have India, and food grain production has grown from 50 million tons in 1950 to over 350 million tons. Means 7 times we have achieved our target. You can imagine 7 times we have achieved our targets, averaging 8.5 million ton annual growth since 2012. Since 2012, there is an annual growth of 8.1 million ton. So it is good and it is commendable. And I have done the calculation that we have so much grains in our FCI godown and in our godown that if we will stake one bag over another, we can go to the moon, we can come down to the moon and still cover 1/3 of the journey. हम हिंदी में बोलना चाहेंगे, those who can't comprehend, कि हम लोगों के एफसीआई गोडाउन में इतने अनाज है अभी कि अगर एक के ऊपर एक बोरी रखा जाए तो हम लोग चंद्रमा तक जा सकते हैं, चंद्रमा से नीचे भी आ सकते हैं, और स्टिल 1/3 जर्नी मीन्स 2.337 times we have moon distance. That much grain we have in FCI godown. Okay. So what is the scenario now? Let me fix it. So launched, I have already talked, and it was for 15 days, pre-Kharif campaign, bridging the lab to land. And when lab to land was launched, 1979 by ICR, Golden Jubilee year, right? Inspired by PM Modi launch of 109 climate resilient crop varieties. So it was a mega launch. 109 climate resilient variety we had launched by ICR IARI August 2024. It was built on behavioral change theory, adult learning principle, and system thinking. So everything has a certain theory or a framework. It is not we come and we did. It is not like that. We have to be totally vigilant what we are doing, what we are not doing. So technology awareness, improved practice for Kharif, and two-way learning, farmers, scientists, reciprocal exchange was also there, and grassroots insight, documenting farmers' innovation and feedback. Means we have to document the farmers' innovation. And I will show you that from Bihar and Jharkhand, we have documented farmers' innovation. See, right now I am giving you the picture of Pan India. Then I will come to Bihar and Jharkhand where I had done the campaign. And then I will come up with the data to prove that whether there is impact of Viksit Krishi Sankalp Abhiyan or not. One nation, one agriculture, one team. So Viksit Krishi Sankalp Abhiyan operated through a convergence-based strategy led by ICR. So we had a convergence with line department. And who are line department? This question is usually asked. All the district agriculture office, ATMA, they are the part of line department because they are 24/7 for the farmers. We are the researchers. Agriculture institute scientists, they are teaching, they are guiding their students. They are not for extension services and extension work, but we are for research.
So who are line department? Who are 24/7 for the farmers? And active involvement from the state government, agriculture university, and local administration, ensuring coordinated action across all levels. So first is at the village level. So let's talk from the regional and national level. Team coordination, policy, and monitoring of resource. So I will show you the whole picture in next slide, and in the coming whole new PPT, that how the monitoring and everything was decided, किस तरह से उनको किया गया था, right? कोई ऐसे हैं जिनको मतलब हिंदी समझने में दिक्कत होती है? प्लीज पुट द मैसेज, फ्रॉम दैट आई विल गेट अ पिक्चर. आई कैन सी गुड इवनिंग मैसेज. अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो आई कैन सी दोज हु कांट कॉम्प्रिहेंड हिंदी. Otherwise, I will switch to English totally. Okay. If you can't comprehend Hindi, then I will switch to English. Okay. So this is it. Then is district level. Multidisciplinary team is there and KVK led planning is there. So KVK is very instrumental. I bet you, give me any program of Government of India, any program in the past 10 years, 20 years, and that was without the support of KVK. Any program, I challenge you. So KVK is very instrumental, very instrumental. It is a backbone of Indian extension system. And the village level farmers interaction, focus group discussion, and technology dissemination. So everything is there. One second. Give me a second. I have to pause certain things. It is interrupting. Yeah. So I can see the participant. Can you see, if you can text me that, can you see the framework, one nation, one agriculture, one team at the top, whether my slide is moving or not? Please update me. On a regular basis, update me. That I will ask you. Moving, sir, moving. Your slide is moving. Wait. Okay. So let's begin. And the village focus group discussion. It is not focused group discussion, it is focus group discussion. Many people have a doubt regarding that. So at village level multidisciplinary team, I was part of that team, conducted interactive group discussion, demonstration, and distributed extension literature in local language, because vernacular language is very important. Why China is growing? There was recently Gaokao. In that, if you will pass that exam, then only you can get entrance and admission in any Chinese university, And how many students appear in that? 3.32 crores. Almost 15 times more than IIT exam. 15 times more than 20 times more than UPSC exam. So Gaokao, whole means road is free, only student will be seen. So why China is growing? Because they think in their original language. जैसे हम लोगों का हिंदी है, तो we think in the original language. And then we convert it into English. So likewise, original thinking always comes in your local language. For example, in which language you see your dream? Usually Hindi, or your means mother tongue, or vernacular language. So original thinking always comes in your original language or the mother language. Okay. So that's why we had used the local language, because if we will use English or other strong Hindi means complex Hindi. So people will not understand. So enabling real-time feedback and farmers' participation at the grassroots. So we had taken real-time feedback. So I have moved to the next slide. Key achievement, we can see that 9 chief minister, 17 union minister, 87 MPs, 185
MLAs attended 400 events in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh had highest farmers participation, and Madhya Pradesh had highest number of program conducted, around 6,909. An unprecedented national reach. We can see that program organized was more than 60,000. How many farmers was reached within a period of 15 days? 15 days, 1.35 crores. And this is the number of Gaokao, Chinese exam. So this much student appeared for that exam. And farmers reached, I am trying to relate the things so that you can remember. And how many male and female, and almost more than 30% were women farmers. In fact, the number is reaching at around more than 35%. 1/3 was female. And distribution of the districts, 728 districts, almost every district of India it was organized. 5.5 crore people via media, print, radio, and social media. So through social media, the reach was 5.5 crores. Almost the physical reach, the digital reach was almost how many times? 4 times. Inclusivity, whom we had included. Sometimes what happens, we take only the rich and affluent farmer, big farmers, general caste farmers, and the other caste farmers is left behind, right? Women participation, 339.7 lakh women participated nationwide. So I had already discussed Meghalaya led by almost 2/3 were female farmer, followed by Arunachal, Ladakh. And that's why it is said that Northeast, in Northeast, women are at the forefront. Anyone from the Northeast, any student or participant, I will drop the message, I will read it after 15-20 minutes. All 8 Northeast states exceeded the national average. So it is good that, and I can see that the number of participants had exceeded 100 plus. So I request the organizing team. So please take the screenshot and please do the recording, sir. It's good that 100 plus participants has joined. And the tribal districts. So in tribal district, we have also covered 176 tribal districts and 25 lakh farmers across 31,000 village. And Odisha led with 5.83 lakh farmers. And Odisha, we had maximum number of tribal farmers and around 9,864 programs in 112 aspirational districts. And why this lecture is important? If you are a student, many idea you will get for your research in extension, economics, MBA, ABM, rural management, that what are the researchable issues. I have come up with the problems, I have come up with grassroots level experience, and I am sharing it with you, and you can have a researchable issues, and you can address it, and you can do research on it. And district level reached 19.89 lakh farmers in aspirational districts. And Uttar Pradesh led with around 3 lakh farmers in aspirational districts. So top agricultural challenge identify. What were the top agricultural challenge that were identified? Was farm machinery implement that if you will see women, still how many of you have ever seen randomly, not a situation based, कि आप गए हैं किसी खेत में और फीमेल ट्रैक्टर चला रही, कितने लोग देखे हैं आप लोग? हम लोग अपने यूनिवर्सिटीज में फीमेल स्टूडेंट को बिठाते हैं कि फोटोज वगैरह ठीक ठाक आ जाए कि हाँ फीमेल भी काम कर रही है. प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी ऐसा करती हैं बहुत ही, कि पिक्चर की वाओ इट लुक ग्लैमरस. बट हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर सीन that women are working with tractor in the field? They are plowing the field with the tractor. That's why we have to work on drudgery
reduction tools and machines, right? So farm machinery implementation, plant protection measures. So there are means whitefly in that green ground. Okay, moong. If you will see, yellow mosaic virus is very often, and it is carrier is whitefly. So plant protection measure we have to think. Even if you will see that fall armyworm in maize. During Corona period, there was a lot of extensive exercises on fall armyworm, and still there is a problem. Fertilizer nutrient management. For example, whatever nitrogen we are giving, very less amount is really used for the plants. If you will Google it, you will get that. Real retention is very less. So that's why fertilizer nutrient management is essential. Horticulture, including vegetables, we have to think about that. Vegetable, for example, how many of you know that the organic state, the first organic state of India? Anyone? Okay, I am telling you, you might be knowing. I know that you might be knowing first, or it is very easy question. Even class 5th and 6th student can answer it. The first organic state of India is Sikkim, right? But on which crop they are working mainly? Which crop? It is vegetables. It is vegetables. So their main forte is vegetable. So they are working on agritourism. And I personally believe, I have a lot of research. If you will see in Global Hunger Index of India, it is 100 plus, because we don't have are having much nutritional security. We have food security, but we don't have nutritional security. So in that case, what is happening? So we have to work on vegetables, because fruits, it is seasonal and it is costly also. But vegetables, if you will go to any mandi, you will definitely get one or two vegetables that will be very lowest price due to overproduction. So nutritional requirement can be fulfilled from that vegetable instead of fruits, which is very costly and which is very seasonal. So seed and improved variety. Seed, I told you in technological trinity, in Green Revolution belt, seed was very much important. Seed, water, fertilizer, three things. That brought Green Revolution. I mentioned it in my PhD thesis, which was on Green Revolution. Golden Jubilee year of green. Water management. Water is the key. I told you that there is a saline water in Punjab and Haryana. And what is saving? The canal water. जो नहर का पानी आ रहा है, Satluj river, that is recharging and making it at least at par for irrigation. And then soil health management. It is very important. If you will see the organic carbon in soil, it is very less at many places. That's why we had organized 11,477 focus group discussion. It is wrong. What is written in the slide is wrong. Focus group discussion with 1.64 lakh farmers across 448 districts. India has over 750 districts, and 20 key problem categories were ranked 10-point severity scale. We know that Likert scale is 5-point continuum, 7-point, and here it is 10-point severity scale. So what were the key challenges and findings? Seed and improved varieties. Good quality seed is lacking, and it has the highest score. Emerged as the most critical challenge nationwide, and nationwide data shows that out of 10, the mean score was 7+, and reflecting gap in access, quality, and climate resilient option. Climate change and water management is close second. Because I will give you example of climate change in the coming slide, that how climate change is impacting with clear-cut picture, not taken from internet, but from my own evidences, that how climate change is impacting. In coming slide, you will see it. And water management. So how we are managing water? Because I had seen yesterday a thing
कि फ्लड इरिगेशन करते हैं, राइट? व्हाट पीपल आर डूइंग, एक प्लास्टिक के अंदर जो है पानी भर दिए और वो रोल करता है, वो प्रेशर, क्योंकि पानी अगर बहा तो रोल करता है, तो जब वो रोल करता है और धक्का देता है तो पानी उस फील्ड में स्पीड से नहीं बहता है, थोड़ा धीरे 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 बहता है। उससे क्या होता है, यूनिफॉर्मली और टाइम रिटेंशन का ज्यादा होता है, फील्ड में ज्यादा देर पानी रखता है। So that is also an innovation. We must think of innovation. Innovation is the key. That's why Global Innovation Index India is ranking 40th. And see all the top countries. Who is at the top 10 Global Innovation Index? All are developed country, because innovation is the key. Single innovation can bring you at the top. For example, Taiwan, very small country. Its stock market is above India now. It is in trillions. It has superseded, and only one company has a maximum share. Which is that company? AI and chip making company. So that is the potential of innovation, and you can't ignore it. If you will ignore the AI innovation and other advancement, definitely you will be left behind, and there will be no alternative, and you will be in a debt trap, and your country economy will go downhill. Okay. And ANOVA confirmed statistical significant difference along 20 all categories. And as I am the expert of statistics also, and if you will Google me, you will get a lot of research paper on my name, lot of research paper in every field. So next slide is research priorities. Next slide is research priorities. Can you read at the top research priorities at the top? I hope it is so. So researchable issue, extension gap, crop production, if you will see that issues over 500 researchable issues, 500 student are problem. What new topic I will tell it? And guide, if you are a guide, I know that 80 to 90% are either guide or student. Many students usually ask, what new topic we will pick? There is no new, it is a repetition. That's why there is a lot of plagiarism. But if you will read the document of Government of India Viksit Krishi Sankalp Abhiyan, you will find 500 researchable issues in 4 clusters. And what were the 4 clusters? Crop production, climate resilient variety, decentralized seed system, that we have to produce seed at the farmer's field with the participatory mode, and low cost machinery for small holders. I told you that big machine. There is a machine, I saw it in where? Madhya Pradesh, because I am the expert of Reliance Foundation project, rural transformation. I visited 15 days. I was walking day and night in Madhya Pradesh, Sivni district, Panna district, and Satna district. I was walking whole day, and I was seeing that what is the agricultural progress. It is a state of agriculture minister, and Madhya Pradesh has received so many Krishi Karman award from ICR. Agriculture growth is very high. So why it is at the top? I went there. I saw a machine which is just like a tank of army. And if you will ask, I will show you the image of that machine. And what is Kubota, Japanese company. And what is the beauty of that machine? In marshy land also, it can cut your rice. Because combined harvester is so heavy, it will go down. And it will sink in the mud, in the marsh. So that machine is costing 35 lakhs. How poor people or poor farmers or resource deprived farmers will purchase, especially from Bihar or Odisha or other states or even Rajasthan, because these states usually called Bimaru states. Few part is rich, Jaipur, Patna, but few districts are poor. Animal husbandry, disease management, fodder security. There is a fodder bank everywhere these days. If you will go to take the fodder of wheat, how much it is costing per kg? 9 rupees per kg because of fodder scarcity.
If a few years back, if you will ask someone that I want to sell fodder of wheat, people will laugh at you. But now what is happening? 9 rupees, 9 rupees, not small. And almost 1.25 times the fodder production is there for wheat and paddy. So that is also a revenue generation model. So if you are producing 25 quintal, so of 25 to 30,000, you are getting it from the fodder only. And then natural resource, water harvesting. I will show that in Madhya Pradesh, as I told you that I had done research in Madhya Pradesh recently, and you will see Balram Talab. Balram Talab, 1/10 of the land, they are reserving it for water conservation during the rainy season. 1/10. And it is called Balram Talab model. You can Google it. So water harvesting is very important. For soil health, we know that vermicompost, and people are saying that organic farming is not good, it is not successful, 3 years production is less. But I want to tell you, ask any farmers. Ask any farmers that do you have heard about vermicompost? They will say yes. If that technology is not much successful, how people are knowing it? Are you getting me? So definitely vermicompost is very important. And recently I went to a NGO that is being funded by Axis Bank. That is Aga Khan Foundation. Very good NGOs. And they have a biogas plant and it is of rubber. You may have seen it in concrete, but Cementics Private Limited, rubber-based biogas plant. It is costing just 27,000 and 50% subsidy that NGOs and Axis Bank is giving. And what is happening? You will be shocked to know that cooking, 12 people cooking, and the aach, the flame of that is very good and very intense than our regular gas. For example, I don't know about other state and other district, but I am from Samastipur, Pusa, Bihar, and after 45 days only I am getting a cylinder. Even then I am ready to pay 10% high 20 there, but we are not getting. So what is the alternative? Biogas is one of the alternatives. Am I audible? Because 6:43, Yes, 45 you are minutes I have audible. already taken. Yes, Audible, sir, audible. Great. So herever there is doubt, you can put a message right now. I can't see any message. So, okay. So biogas, I was talking about biogas. So see the model. You can transfer it from one place to another place, shift from one place to another place. I can show you the picture also. You might have never seen. So in your state, if you will pay for gas cylinder, you may not get it even after paying money. So in that case, what is the alternative? And one best important thing, the biogas slurry, the fertilizer Mr. Sorry to coming interrupt out. you. One participant had posed, I think she's facing language related issue. Kindly use bilingual language so that other student can understand. Okay, means he has put it in message. Okay, I can see 14 messages. Let's see. So issue you can continue, sir. Okay, let me check it, madam. Comfortable in both language. Yes, Prakash sir, English language में दिक्कत होता है. Okay, Ayushi Kumari. Yes, sir, slide is visible. Okay, Sikkim, someone has answered. Sorry, I could not read it. Very good. Means Satyam Kumar, I appreciate you. Sonali Kumari, I appreciate you. Satyam Kumar, vegetable, excellent. Very good. You are intelligent, but vegetable spelling is wrong. It may be due to गलती में आप speed में लिख दिए होंगे vegetable का spelling गलत. And I can see Khan Sahab also, Azlan Khan. Both the answer is correct. And I can see participant may post the question in chat box. Nisha Rana ma'am has posted it. Okay, ma'am. Thank you for update. So 45 minutes I have consumed. So let's move further.
तो हिंदी में हम समझा रहे थे कि मात्र एकदम सस्ते में प्रोडक्शन हो जा रहा बायोगैस का, और वो भी रबर वाले स्ट्रक्चर में। तो आप सोचिए कि दिस इज कॉल्ड इनोवेशन, एंड पीपल आर फाइटिंग दैट प्लीज इंस्टॉल इन माय हाउस। 200 एप्लीकेशन वी हैव गॉट अर्लियर बिफोर दिस गैस क्राइसिस। 20 लोगों तक भी पहुंचना मुश्किल हो रहा था। लोग बोल रहे हैं अरे क्यों, कौन टाइम वेस्ट करेगा, कौन इतना गोबर करेगा। एंड उसका ड्वेल एडवांटेज है, बाय प्रोंग्ड स्ट्रेटेजीज, मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी, टू प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी। पहला तो आप गैस मिल गया 12 लोगों का, और नॉन स्टॉप गैस मिल रहा, फ्लेम भी स्ट्रांग है। और दूसरा जो उससे स्लरी निकला 40 किलो गोबर का रोज, आप उसको बेच सकते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट से भी ज्यादा न्यूट्रिशियस है, क्योंकि हम लोग क्या प्रिविलेज है कि वी आर वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी which has opened the school of natural farming। नेचुरल फार्मिंग का स्कूल हम लोग खोले हुए हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे जो स्टूडेंट है लोग फाइट कर रहे हैं, अभी 3rd ईयर में ही है, 100% प्लेसमेंट हो गया, लोग लेके जा रहे हैं। अभी 2 महीने का इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनका खाने रहने टोटल फ्री, 10,000 अलग से भी दे रहे हैं। और अब उनको स्टूडेंट मिल नहीं रहा, तो वो लोग बोल रहे सर हमको 2nd ईयर वाले ही दे दीजिए। सो यू कैन सी, if you have a certain set of knowledge, there is a high demand, you can talk to those students. Now coming to the other thing, diversification, horticulture value chain. You have heard about agri-food system, agri-food system, there is a buzzword। आप कुछ भी कॉन्फ्रेंस देखो, एग्री फूड सिस्टम। आप नहीं है विश्वास, आप जो भी सेमिनार हो उसमें देख लेना, अगर ये 3 वर्ड नहीं आया। तो एग्री फूड सिस्टम में वुमन का इन्वॉल्वमेंट की हम लोग बात करते हैं, और स्पेशली ये होता क्या, फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केटिंग तक जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये होता है एग्री फूड सिस्टम। एंड एक्सटेंशन गैप, की नॉलेज एंड स्किल गैप आइडेंटिफाइड इंक्लूड्स, क्या क्या गैप आया, अवेयरनेस एंड इंप्रूव क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज, इनके बारे में नॉलेज कम था। इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड वीड मैनेजमेंट, क्योंकि एक मैनेजमेंट हम लोग ग्लाइफोसेट डाल दिए, वीड मैनेजमेंट हो गया, लेकिन इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है, सॉइल टेस्ट बेस्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, कस्टम हायरिंग सेंटर, जो महंगे महंगे इक्विपमेंट है उसका एक सॉल्यूशन है कस्टम हायरिंग सेंटर। और क्लाइमेट लिटरेसी, हम लोग आज डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, लेकिन क्लाइमेट लिटरेसी एंड टोटली, तो ये कीवर्ड है, अपने थीसिस में आप टॉपिक में डाल सकते हैं, क्लाइमेट लिटरेसी और फार्म वुमन। तो आप सोचिए कि कितना टॉपिक बजवर्ड आपको मिल रहा है। एंड टाइमली एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो फार्म लेड इनोवेशन एंड पॉलिसी इनोवेशन, 300+ innovations document we have called, and grassroots innovation called जुगाड़, जुगाड़। और ये इंडिया में अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या हैं, एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और जुगाड़ अगर आपको लगता है कि अरे ये तो गरीबों का काम है, तो आप आयरन मैन मूवी देखे होंगे, उसमें जो हीरो है, तो आपको पूरा हाईटेक टेक्नोलॉजी भी जानना चाहिए। और उनको जब किडनैप करके अफगानिस्तान में एक कबाड़ खाने में जब उनको डाल दिया गया आयरन मैन को, तो वो उस कबाड़ खाने से भी अपना आयरन सूट बना लिए, जिससे वो बाहर निकल सके, जो जिससे वो हवा में उड़ सके, जिससे वो अपना चैलेंजिंग टास्क कर सके। तो आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा। आप बोलिएगा अरे रिसोर्स मिलेगा, ये मिलेगा, नहीं, आपको टेक्नोलॉजी का अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। जैसे आज चंद्रयान है, तो एक मूवी जितना में बनता हॉलीवुड, उससे भी कम में हम लोग चंद्रमा में चले गए ना, साउथ पोल में। वी आर द फर्स्ट नेशन टू रीच द साउथ पोल। तो आप समझिए कि आप रिसोर्स का रोना रोइएगा तो फिर देश तरक्की नहीं कर सकता, और कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। आज अगर आप देखेंगे कि इलॉन मस्क जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, और जो सेकेंड रिचेस्ट है उससे 3 गुना 4 गुना है। और यह भी कहा जाता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रिलियनियर वही बनेगा। एंड सी द लाइफ स्टाइल, वो भी जुगाड़ से बहुत आगे बढ़े। एंड मैनी सपोर्टेबल वैलिडेशन एंड अपस्किलिंग थ्रू नार्स, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सिस्टम इंस्टीट्यूट से इसको आगे बढ़ाना होगा। की गैप इंक्लूड सीड क्वालिटी रेगुलेशन, एग्रोकेमिकल प्राइसिंग, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। तो फसल अगर अभी ही हर साल अभी आ रहा है, मार्च में ही बिहार में तो हम देखे, आई डोंट नो अबाउट योर स्टेट, आप अपना स्टेट के बारे में मुझे अपडेट कीजिए।
उसमें क्या है, अभी मार्च में अनसीजनल रेन हुआ, उससे काफी ज्यादा वीट एंड मेज ज्यादा डैमेज हुआ, मेज का पौधा ही गिर गया। एंड इन बिहार, इन माई एरिया, आई एम फ्रॉम पूर्णिया एंड अरेरिया रीजन, एंड इट्स प्रोडक्शन इज इक्विवेलेंट टू कैलिफोर्निया, यूएसए को टक्कर देते हैं हम लोग। इतना रबी मेज का प्रोडक्शन है, इतना ज्यादा, आप गूगल कर लीजिए। एंड इन दैट देयर इज अ स्लोगन, मक्का टू पक्का। मतलब अगर हम लोग मक्का उगा रहे हैं तो पक्का का घर बना पा रहे हैं, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। तो वो डैमेज हो गया तो आप पक्का का तो ड्रीम रह गया। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्ट्रीमलाइन करना होगा। कस्टम हायरिंग सेंटर की हम बात कर चुके हैं। एंड इंक्लूजन ऑफ टेनेंट फार्मर्स, जो अधियादार हैं, जो बेचारे दूसरे के खेत में, आजकल बहुत यही हो रहा, मालिक कोई और है, खेती कोई और जोत रहा, उनके लिए कोई पॉलिसी अभी नहीं है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट। आप लोग रिसर्च भी कर सकते हैं टेनेंट फार्मर्स पे। स्टेट स्पेसिफिक प्रायोरिटीज, रिसर्चेबल इश्यूज वर मैप्ड स्टेट बाय स्टेट। तो हम आपको 2 स्टेट का हम दिखाएंगे कि कैसे हम लोगों ने मैपिंग किया था। फ्रॉम फ्लड रेजिलियंट राइस इन असम टू ड्रॉट रेजिलियंट सिस्टम इन रायसेमा हिल्स, इनेबलिंग लोकलाइज्ड डिमांड रिसर्च एजेंडा। तो जहां पर ड्रॉट है उनका हम लोग वो पॉलिसी बनाए, फ्लड है असम में, वहां पर हम लोगों ने अलग पॉलिसीज। सो पाथ क्या है लैब टू लैंड का, यू कैन सी द पाथ। स्ट्रॉन्ग सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, ये बहुत जरूरी है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे प्रधान, ये वो एक वेस्ट बंगाल की अगर आप बात करें तो वहां पर जो है कृषक बंधु स्कीम चलता है। वहां पर ये नहीं है, किसान सम्मान निधि नहीं है, 6,000 रुपए गवर्नमेंट का वो लोग नहीं लेते हैं। ईगो प्रॉब्लम, अरे किसान का भला हो इंपॉर्टेंट। अभी अगर आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा अगर कोई राज किए हैं तो सीपीआई सीपीएम का है। एनीवन फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई डोंट नो एनीवन फ्रॉम वेस्ट बंगाल और नॉट। और अभी उनके जो बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनके जो सीपीआईएम के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर थे, उनकी वाइफ अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट की पढ़ाई की। सो फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, वी शुड बी अबव एनी गवर्नमेंट। कि आप मेरे दुश्मन भी अगर फार्मर्स के लिए अच्छा काम करे, वी शुड सपोर्ट देम, वी शुड लिसन टू देम, वी शुड अप्रिशिएट देम। क्योंकि नेशन फर्स्ट अप्रोच, we should keep our nation first and farmer centric approach, demand driven research, जो चीज का डिमांड है। और अगर एग्जांपल जैसे शीशम की बात करें, पूरा सिस्टम, हम अभी एक मेज का भी प्रॉब्लम दिखाएंगे। अगर आप उस पर रिसर्च कर लेते, खोज लेते, तो लाखों, एक दिन में आप जो है मिलियनर बन जाइएगा हनी सिंह की तरह। आप समझिए कि रियल इनोवेशन इज लैकिंग। सो डिमांड ड्रिवन रिसर्च होना जरूरी है। एंड रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज, की रिस्पॉन्स ले पॉलिसीज में। एंड दैट्स व्हाई शिवराज सिंह चौहान जी लॉन्च्ड विकसित कृषि संकल्प अभियान एंड रिन्यूड रिजॉल्व ऑफ इंश्योर प्रॉस्पेरिटीज। एंड हाउ इट कैन बी अचीव्ड, स्ट्रेंथनिंग केवीकेस स्केल इनोवेशन, एंड वी हैव वैलिडेटेड एंड अपस्केल 300+ इनोवेशन। उसमें से कुछ हम लोग दिखाएंगे। and translate insight into concrete regional specific intervention। तो रीजन, कोई इनोवेशन आपके लिए काम है, मेरे लिए नहीं हो, तो रीजनल स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, और इंडिया में अगर आप बात करें तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, सबके लिए सिचुएशन अलग अलग है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट इज इंपॉर्टेंट, टेलर मेड कंटीजेंसी प्लान, लोकेशन स्पेसिफिक कंटीजेंसी प्लान। बीच बीच में हम टाइम भी देख रहे हैं ताकि I can cover all the things that I had committed। फर्टिलाइजर नीड वेरी बाय जोन, तो जो सॉइल का कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर देना चाहिए। रिस्क प्रोफाइल डिफर शार्पली, रिस्क क्योंकि अलग अलग है। एंड क्रॉप सिस्टम आर नॉट इंटरचेंजेबल, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, आई एम इन समस्तीपुर राइट नाउ, यहां पर मेज जो होता है इंटरक्रॉपिंग होता है इसके साथ, पोटैटो के साथ। लेकिन मेरे रीजन में पूर्णिया और अररिया में सोनली मेज है, तो उनके फार्मर्स को हम बोलेंगे कि नहीं नहीं पोटैटो भी लगाओ, दे विल नॉट लिसन टू यू। सो दीज आर द 15 एग्रो climatic zone, you can see
that Bihar comes under fourth zone. It is called मिडिल गैंगेटिक प्लेन. अगर कोई स्टूडेंट से कोई थीसिस लिखना चाह रहे हैं या टॉपिक डिसाइड करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये जोन वाइज अगर आप टाइटल में डाल देते तो टाइटल काफी कैची हो जाता है. तो जैसे यहां हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान जो है 13th जोन में, 13th जोन में है. राइट. और एग्रो इकोलॉजिकल जोन फिर अलग है. और इंडिया जो है 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है. तो उसमें फिर बिहार जो है 13th जोन में आ जाता है. आप देखिए कि बिहार जो है 13th जोन, और बिहार का कुछ पोर्शन जो है किस में चला जाता है, 11th जोन में. तो अलग अलग जोन से, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो आप लोग इंटरचेंजेबली चेंज कर सकते हैं पब्लिकेशन में, टाइटल्स में. तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि टाइटल कैची हो जाए. और टाइटल कैची इसलिए क्योंकि आप देखो ना कि कवर पेज और कवर डिजाइन अच्छा रहे तो पीपल गो टू, अरे यहां क्या चमक रहा है, यहां क्या चल रहा. सो पीपल थिंक, एंड वी नो दैट इट इज अ नेशन वाइड रीच एंड लैब टू लैंड अप्रोच, रेजिलिएंट एंड फ्यूचर रेडी. हम लोगों को, किसान को और फार्मर्स को और स्टूडेंट को फ्यूचर रेडी बनाना है. एंड अब हम आ जाते हैं कंपेन ऑन बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर. कंपेन ऑन बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर जो मई में ही शुरू किया गया. IRI और सारे ICR इंस्टीट्यूट काफी इसको बनाए. और आप देखो कि इंडिया का कितना खर्च हो जा रहा है 2022 और 23 का. अगर आप डेटा देखो, इफ यू विल सी, तो इंडिया का फर्टिलाइजर सब्सिडी में $2.25 ट्रिलियन एक्सपेंस हो रहा. कितना? 2.25 ट्रिलियन रुपीज, सॉरी रुपीज. और 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं एनीवन? 12 जीरो. आप सोचो अगर इतना पैसा हम बचा लेते हैं तो कितना चीज हो जाएगा हम लोगों का. 2.23 ट्रिलियन डॉलर्स, सॉरी रुपीज हम लोग बचा सकते हैं इफ यू कैन सब्सिडी, और अपना खुद का फर्टिलाइजर सस्टेनेबल हो जाए. और आप देखिए कि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया हैज एक्सपोज्ड इंडियन वल्नरेबिलिटी टू फर्टिलाइजर. यूरिया काफी महंगा है, डिमांड काफी हाई है, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है अमोनियम सल्फेट यूज कीजिए. पैसा दे के भी महंगा मिल रहा है, और पैसा लाएंगे भी तो कहां से? डॉलर भी गिर रहा है, बिकॉज इनोवेशन भी नहीं है. अगर हम लोग सिर्फ इंपोर्ट 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 करें, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली देयर इज अ ट्रेड डिफिसिट एंड मनी विल गो डाउन, डॉलर विल गो अप. ओके. और आप ये पिक्चर जरूर याद रख लो. ये डायग्राम जबरदस्त डायग्राम है. दिस पिक्चर विल शो द डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया ऑन अदर थिंग. यूरिया पे डिपेंडेंसी कितना हम लोगों का? 13%. अपना खुद से 87% ही प्रोड्यूस करते, 13% बाहर से लाना पड़ता. नेचुरल गैस, जो आज गैस का किल्लत है, 20% ही इंडिया बेचारा खुद से प्रोड्यूस करता. अगर विदेश से कंप्लीट कट ऑफ हो जाए तो मतलब 100 करोड़ लोगों तक गैस पहुंच रहा है, तो सोचिए 20 करोड़ नहीं पहुंचेगा, 80 करोड़ बिना गैस का ही रह जाएगा. फॉस्फेटिक रॉ मटेरियल, अभी हम आपको बतलाए DAP, और अभी DAP को दुश्मन बनाए हुए हैं. अभी इंडिया का, मेरे पास लिस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिस्ट, कि कौन सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर फॉस्फोरस यूज कर रहा है, कौन कंट्री है. आई विल शो यू दैट स्लाइड इफ यू विल. अगर अंत में टाइम बचे तो यू कैन आस्क मी. तो उसमें मेरे बिहार का 2 डिस्ट्रिक्ट है. एक है पूर्णिया, मेरा खुद का डिस्ट्रिक्ट है, और दूसरा है वैशाली. ये सबसे ज्यादा फॉस्फोरस यूज करता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर. और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम लोग बाहर से 90% तक लाते हैं, 90%, और 10% ही इंडिया में होता है. और पोटेशियम तो भूल ही जाइए, पोटेशियम का कुछ है ही नहीं हम लोगों के पास, 100% बाहर से आता है. NPK में के जो है 100% बाहर से आता है. वी इंपोर्ट 100% ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, सॉरी ये पोटेशियम फर्टिलाइजर. राइट. लेटेस्ट फर्टिलाइजर सिचुएशन अगर आप देखोगे तो ये है यूरिया इंपोर्ट का, आप देखो, और DAP इंपोर्ट का देखो कि वो हर महीने, मतलब पिछले साल से बढ़ ही रहा है. यूरिया भी बढ़ गया, DAP बढ़ गया, और फिर सेल थोड़ा सा बढ़ा ही बढ़ा है. और यूरिया इंपोर्ट रोज 83%. आप सोचो एक ही बार में 83% जंप, आप समझ रहे हो. आप ही से बोला जाए कि आप जो अभी खर्च कर रहे हो
सैलरी नहीं बढ़ेगा, 83% एक्सपेंस बढ़ जाएगा, हाउ विल यू सस्टेन? And that's why campaign on balanced use of fertilizer is a timely intervention in campaign to make aware the farmers. और नैनो फर्टिलाइजर्स, अगर आप लोग नैनो फर्टिलाइजर की बात करें, नैनो यूरिया एंड नैनो डीएपी, और नैनो यूरिया का मे भी क्रिटिसिज्म हो, आप खुद से चेक करना। और एक कट्ठा, आई नो द डोंट नो द यूनिट ऑफ योर स्टेट, कि 1 कट्ठा इज इक्वल्स टू 1/22 पार्ट ऑफ एकड़। आप 1 एकड़ का 22वां भाग कर लेना, अगर आपको कट्ठा नहीं आता। जो भी एक्सपेरिमेंट करना वहां करो, वहां पर आप करिए, इट विल बी वेरी गुड, एंड देन यू कैन कम टू द कंक्लूजन। नैनो डीएपी का अभी जो है फॉरेन कंट्री से भी हम लोगों का एमओयू हुआ, तो मींस फंक्शन कर रहा, तब तो एमओयू हुआ। आप गूगल कर लो कि इफको हैज अ एमओयू विद अदर कंट्री रिगार्डिंग नैनो डीएपी, राइट? एंड व्हाट अ लोकेशन स्पेसिफिक कैंपेन शुड लुक लाइक। तो लोकेशन स्पेसिफिक आप देखो, 3 कॉन्ट्रास्ट है। इरिगेटेड रेन बेल्ट, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार की अगर बात करें। रेनफेड ड्राई जोन, बुंदेलखंड जोन की अगर हम लोग बात करें। राजस्थान का बहुत सारा जोन्स है। समटाइम्स कर्नाटका का जोन है जो कावेरी का पानी नहीं छोड़ते हैं। एंड ईस्टर्न एंड कोस्टल जोन जो हर हमेशा फ्लडेड रीजन होता है। तो सबके लिए हम लोगों का अलग कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए। फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ विकसित कृषि संकल्प अभियान, इट शुड बी डायनेमिक, नीड बेस्ड थीम्स एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए। रेजिलियंट एंड स्ट्रेटेजिकली सिक्योर्ड एग्रीकल्चर होना चाहिए। अब हम इसी का बतला रहे थे कि मिलियनेयर आप लोग बन सकते हैं। इन येलो मेज में ये प्रॉब्लम है। येलो मेज यूजुअली पोल्ट्री के लिए, अगर आप लोग नहीं जानते मेज, बिकॉज हम लोग तो मेज के बीच ही रहते हैं। अगर आप अभी बिहार आ जाइए, अगर रोड में भी मेज सुखाते नहीं मिल गए लोग तो बोलिएगा, पूरे रोड में बिछा हुआ होगा मेज, तो रोड में चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो येलो मेज है, येलो सीडेड मेज है, एक व्हाइट है, व्हाइट को हम लोग खाते हैं। और येलो सीडेड मेज के टिप में क्या हो जाता है, फंगल ईयर रोट्स हो जाता है, और इसकी सिल्क के थ्रू घुसता है, ये पूरा कवर नहीं रहता। तो उसमें पानी जैसे गया तो फिर फंगस होके ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये खा लेता है, ये खराब हो जाता। तो अगर आप मेज का पूरा प्रोपोर्शन तो सोचिए कि 10 to 15% डैमेज हो जाता। तो आप 10 to 15% डैमेज हो गया, तो आप सोचिए कि हम लोगों का 90 क्विंटल, और उसका 10 to 12% तो 15%, इट इज अराउंड 14 क्विंटल, और ये 1 हेक्टेयर से हो रहा। तो सोचो बिहार का क्या होगा। अगर इस प्रॉब्लम को कोई जेनेटिक्स वाले सॉल्व कर लेते हैं, और प्राइवेट कंपनी आपको हाथों हाथ लेगा, आई टॉक्ड टू प्राइवेट कंपनी, और आईसीआर भी अभी तक नहीं की है इसको। अगर ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी अ मिलियनियर, करोड़ों आपको मिलेगा, करोड़ों। एंड यू कैन सी द डायग्राम, यहां पे भी ब्लैक है और यहां पे भी ब्लैक है। आगे बढ़ते हैं। अब दुनिया के सबसे बड़ा शहर की अगर हम बात कर दे, राइट, तो सब के सब भारत में है। आप इमेजिन करो ना, पहले गर्मी कहां पड़ेगा, अफ्रीका में। हम लोग सोचते थे अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीका, डेजर्ट है, ये डेजर्ट वो डेजर्ट बचपन से। आज 22 अगर शहर है, मीन्स सिटीज है, ऑल आर इन इंडिया, ऑल आर इन इंडिया, समझ लो। That's why we have to do climate resilient agriculture. We have to save the plants. World Environment Day था अभी 5th of June, 3 days back. We have to think about it. Otherwise इंडिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे फॉरेन कंट्री के प्लेयर, बहुत, एंड दैट इज इकोनॉमिक लॉस, कल्चरल लॉस ऑल्सो। फॉरेन कंट्रीज के प्लेयर आए इंडिया में, वो बोले हम फाइन 40 lakhs का दे देंगे, लेकिन इंडिया में खेलेंगे नहीं, बिकॉज सांस लेना मुश्किल है, गर्मी बहुत है। एंड राइट नाउ यू आर फीलिंग द हीट ऑफ इट। आप लोग गर्मी का विध्वंस झेल रहे होंगे अपने अपने स्टेट में। और 22 शहर है अगर वर्ल्ड में जहां अत्यधिक गर्मी पड़ रहा है, लॉट ऑफ हीट हो रहा, ऑल आर इन वेयर, इंडिया। और ये भास्कर का न्यूज है। भास्कर, यू नो दैट
राजस्थान का नंबर 1 न्यूज है, जहां के ऑर्गेनाइजर हैं हमारे। और आप देखो कि ये कौन सा आम है, कोई बता सकता है? कोई अगर बतला दे तो डेफिनेटली आई विल हेल्प दैट स्टूडेंट। ये मल्लिका आम है। मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम आपको बतलाएंगे। एक क्वेश्चन आया है, कोई एक सेकंड, लेट मी रीड द पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट में पोस्ट क्वेश्चन। सर मेरे पास वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है, बायोगैस भी है, हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं, साथ में भी के और लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। इट इज गुड सत्यम कुमार जी, एक्सीलेंट, आई अप्रिशिएट यू एंड पीपल, 3 people हैज गिवन यू थम्स अप आल्सो। What roles does Viksit Krishi Sankalp Abhiyan claim in promoting modern agriculture practice? So, modern agricultural practices में हम आपको बतला रहे, मध्य प्रदेश हम गए, जीरो टिलेज आईआरआई में हम थे एज अ सीनियर रिसर्च फेलो विद डॉक्टर रविनाथ पढ़ाड़िया सर, और हम थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। उस समय हम लोग पंजाब हरियाणा में जीरो टिलेज करवाने का कोशिश कर रहे थे। रेयरली फार्मर्स वर टेकर, रेयरली फार्मर्स वर टेकर कि जो है जीरो टिलेज और हैप्पी सीडर से वीट लगाएंगे, वेरी रेयर, और जीरो टिलेज से राइस लगाएंगे, पेडी लगाएंगे, वेरी रेयर। और आज आप देख लो, everyone in मध्य प्रदेश इज यूजिंग जीरो टिलेज, आप जाके देख लो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ विकसित कृषि संकल्प अभियान, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे प्रमोट कर रहे हैं। वीट में आप सिवनी वाले बेल्ट में जाओ, 100% जो है आपको मिल जाएगा सिवनी मध्य प्रदेश में। फिर से दे आर यूजिंग 100% स्प्रिंकलर इन वीट, इन ग्रीन ग्राम, ये भी रबी का क्रॉप है, राइट, इन मस्टर्ड, ये भी रबी का क्रॉप है। तो आप देखो ना, 2 टेक्नोलॉजी, लेजर लैंड लेवलर। एक आदमी, हम पंजाब हरियाणा में हम बात किए, एक आदमी अगर बुराई कर दे लेजर लैंड लेवलर का, तो मेरा नाम आप बदल दीजिए, हम खुद उस फार्मर से बात करेंगे। सो दिस इज द ब्यूटी। तो हम लोग जो है लेजर लैंड लेवलर, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जीरो टिलेज मशीन, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, ये सब जो टेक्नोलॉजी है इसको प्रमोट किए। और आपको अभी दिखाएंगे कि लीची, बिहार हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन वर्ल्ड, हाईएस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन सेल्फ लाइफ बहुत कम है। एक ही, इतना गर्मी पड़ रहा, एक ही दिन में जो उसका कलर रेड से क्या हो जा रहा है, ब्लैक, कवर ये हो जा रहा, ब्राउन ब्राउन, कोई खा नहीं रहे। तो उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, उसका टेक्नोलॉजी हम लोग विकसित कृषि संकल्प अभियान में ढूंढे, बिहार से ही ढूंढा गया, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर काफी बड़ाई भी किए। आप गूगल कर लीजिए वो वीडियो। So this is your answer, Ankit Kumar Singh ji, and things will get more unfold if you wish. और कोई क्वेश्चन? आई डोंट थिंक सो। तो ये आम कोई अभी तक नहीं बतलाया है कि कौन सा आम है ये। ये मोस्ट डिमांडेड मैंगो है, इसका नाम है मल्लिका। लंबा लंबा बड़ा बड़ा आम होता है, और इसमें आप देख रहे हो मल्टीपल क्रैकिंग्स है, और अभी इसका पकने का भी टाइम नहीं हुआ है, जून के अंत में पकेगा। और ये पक के गिर गया, आधा पजा, और बहुत खट्टा, हम खुद खा के देखे, एक्सट्रीम खट्टा। और क्यों ये क्या कहते हैं टूट के गिरा है पता है? हीट स्ट्रेस, इंटेंस हीट स्ट्रेस। 2-3 टॉप कोज था बगल में, आप देखो कि क्रैकिंग स्प्लिटिंग इज ड्यू टू इरेगुलर वाटरिंग, यूनिवर्सिटी का ही पेड़ है तो वाटरिंग हम लोग दिए हैं। ब्राउन बोरोन डिफिशियंसी, बोरोन यूनिवर्सिटी का ही पेड़ है तो बोरोन डिफिशियंसी भी नहीं होगा। तो हुआ क्यों? हीट स्ट्रेस। गर्मी से कैसे बचा लोगे पौधे को? कितना पानी दिन भर स्प्रे करते रहोगे? उससे ज्यादा तो मैंगो का खर्च हो जाएगा। आप समझो, आप सोचोगे कि घर में एसी लगा लेंगे, तो क्या आप अपने पेड़ में भी एसी लगाओगे क्या? आप देखो प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड हीट स्ट्रेस। और ये सारे चैलेंजेस को हम लोग एड्रेस करना है नेक्स्ट। अभी सेव द फार्म कैंपेन, खेत बचाओ अभियान, इतना गर्मी पड़ रहा है। आप ये देखो, नेट पे भी आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा। और वर्कर्स आर सीन पोरिंग वाटर, ये टाइम्स नाउ का न्यूज है कि लेडीज है, आप सोचो ना कि कितने फंगल डिजीज होंगे। लेडीज है अपने ऊपर पानी डाल दिए, गर्मी में काम कर रहे हैं एज ए लेबरर, दे आर पोरिंग वाटर। और ये टाइम्स वर्कर आर सीन पोरिंग वाटर ओवर देमसेल्फ व्हाइल कंटिन्यूइंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन ब्लेजिंग सन।
तो ये तो दिल्ली का न्यूज है। तो हमारे लेबरर्स, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, वो खेत में काम कर रहे हैं, वो अभी खेत में फसल काटे, वो कैसे सन से बचते होंगे, हीट से बचते होंगे? सो वी हैव टू डू इनोवेशंस। और अभी हम लोगों ने कराया है कैंपेन ऑन बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर। यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने वन टीम वन टास्क, स्टूडेंट को भी हम लोग फील्ड पे ले जा रहे हैं, यूजी पीजी एंड पीएचडी स्टूडेंट को। हमारा ये ऑडिटोरियम है, मिनी ऑडिटोरियम है, तो उसमें सारे स्टूडेंट्स को हम लोग इन्वॉल्व किए और सारे लोग अभी जा रहे हैं। एंड रिसेंटली वी हैव डन 27 और ये देखिए कि 1 जनवरी को हम लोग खेत बचाओ अभियान शुरू किए। यू कैन सी 1 जून 2026, 8 days बैक, व्हेन दिस समर स्कूल वाज लॉन्च्ड। और फीमेल देखिए कि फीमेल का कितना पार्टिसिपेशन है। एवरीवेयर फीमेल इज लीडिंग बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर। कोई बताएंगे कि फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर क्या है? एनीवन? व्हाई इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड? तो अभी रीच कर रहे हैं अमित कुमार सिंह जी कि ये हम लोग चाहिए, अच्छे डेडिकेटेड लोग चाहिए, तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट? ओके, सो कहाँ थे हम? फीमेल का पार्टिसिपेशन, फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर हो क्या रहा है? बेसिकली मेल माइग्रेंट्स, मेल मेंबर चले जाते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सऊदी अरेबिया कमाने के लिए, कतर कमाने के लिए, दुबई कमाने के लिए, और घर में बच जाती है फीमेल। तो इसलिए फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, और फीमेल इज एट द फ्रंट फोर फ्रंट बेसिकली। और ये देखो कि यूनाइटेड स्टेट, यूएई की अभी हम लोग बात किए, राइट? यूएई की हम लोग बात किए। एक सेकेंड, हाउ वी कैन इंप्लीमेंट रेनफेड एग्रीकल्चर अंदर विकसित कर, हम क्वेश्चन अंत में ले लेंगे, ठीक है ना? 2-3 क्वेश्चन फिर से आया। अंडर द इंटेंस सन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फार्मर फेस हीट। तो ये क्या है? एक छतरी टाइप है, इससे फॉग लगातार निकलता है, और ये पीछे मशीन है, तो फेग निकलता है, तो वहां का टेम्परेचर भी ठंड रखता है और पौधे तक भी वो चले जाता है। सो दिस इज द ब्यूटी, दैट इनोवेशन वी हैव टू वर्क ऑन। और आप ये देखो कि झारखंड मेंटेन जीरो पॉल्यूटेड गंगा। नमामि गंगे का आप लोग नाम सुने होंगे। 7 साल से एक भी पॉल्यूशन नहीं है झारखंड में। अगर झारखंड ये अचीव कर सकता है, तो जहां से ओरिजिन गंगोत्री है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, वो क्यों नहीं प्यूरिफाई कर सकती है गंगा वाटर को? बिकॉज लैक ऑफ कमिटमेंट। एक ही तो कंट्री है, एक ही तो देश है। और आप देखो कि वाटर, गंगा का कितना साफ सुथरा झारखंड में। और 7 ईयर से, एक साल नहीं कि एक साल अच्छा टारगेट अचीव कर लिए, प्राइज ले लिए, ओके हो गया, एवरीथिंग ओके, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा एक स्लाइड अभी कंप्लीट हुआ। आई विल ओपन द नेक्स्ट स्लाइड। लेट मी टेक द क्वेश्चन। ओके, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट रेनफेड एग्रीकल्चर अंडर विकसित कृषि संकल्प इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट? आई नो दैट इसके लिए आपको अभी जैसे ये जो करवा रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, झांसी करवा रही है, तो वो लोग ये देख रहे हैं कि रेनफेड एग्रीकल्चर को कैसे, उसके लिए अभी बहुत सारा हम क्वेश्चंस भी बनाए थे। तो उसमें एक है कि मेडिसिनल प्लांट, रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट, वो हार्डी सॉइल में भी लेमन ग्रास ये सब काफी अच्छा उग जाता है। फॉडर क्रॉप्स बहुत है, यू कैन बी द फॉडर एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि फॉडर क्राइसिस बहुत हो रहा है। हम अभी ये मध्य प्रदेश, जो फिर से हम एग्जांपल लेना चाहेंगे, वहां से महाराष्ट्र जा रहा था, वहां से पंजाब जा रहा था, वहां से हरियाणा जा रहा था, तो आप तो काफी नजदीक है उत्तर प्रदेश में, ठीक है? और लैंड अमंगस्ट जनरल इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रैक्टिस जीरो टिलेज। तो जहां पर ये फ्रेगमेंटेड लैंड है, तो अब सुनो, अब हम इसीलिए तो एफपीओ बना है। आप बोल रहे हो फ्रेगमेंटेड लैंड है इसलिए एफपीओ बना, तो एफपीओ क्यों बनाए? कलेक्टिव प्रोडक्शन, कलेक्टिव मार्केटिंग। तो अगर आप एफपीओ बना लिए या कलेक्टिव फार्मिंग करवा रहे हैं, या आप बात ये करें कि सपोज आपका एक पेज में है 25 एकड़, 0.2525 एकड़, 4 आदमी आप बात करें कि 1 एकड़ हम लोगों को जीरो टिलेज करना है, इसका ये फायदा है,
तो आपको कलेक्टिव फार्मिंग या एफपीओ के माध्यम से वो पॉसिबल हो जाएगा। और हम लोग बिहार में ये करवा रहे हैं। यहाँ भी लैंड फ्रेगमेंटेशन काफी हाई है, इवन पंजाब एंड हरियाणा में भी है। तो ओनली टू सॉल्यूशंस आर देयर। फ्रेगमेंटेड लैंड में अगर आपको जीरो टिलेज कराना है, कलेक्टिव फार्मिंग कराना होगा, या एफपीओ के थ्रू कराना होगा। सीड ड्रिल मेथड, वन प्लॉट इन वन प्लेस एंड अनदर एट डिफरेंट प्लेस। तो डेफिनेटली आपको यही अप्रोच लेना होगा, और कोई अल्टरनेटिव तो आपके पास नहीं है राइट नाउ। फ्यूचर में आ सकता है तो अलग इश्यूज है। एंड प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी, जैसे डिबलर, आप अगर मेज करते हो तो डिबलर, उससे भी लाइन सोइंग होता है। मात्र 2-2.5 हजार का मशीन है। आप डिबलर मशीन को, आप, हम लोगों का एक रिसर्च पेपर भी है, सुधांशु प्रसाद लाल डिबलर करके खोजिएगा। तो हाथ से प्रेस किए, वो सीड राइट प्लेस में चला गया और लाइन सोइंग हो गया मेज का। तो 2-2.5 हजार का मशीन है, आप आराम से खरीद के लाइन सोइंग भी कर सकते हैं मेज में थ्रू डिबलर। So this is the answer regarding the problem of what is which type of crop should be grown. तो जो फॉडर क्रॉप हम आपको बतला दिए हैं, मेडिसिनल प्लांट है वो बतला दिए हैं। फेमिनाइजेशन मीन्स ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन वुमेन फॉर एग्रीकल्चरल लेवल। आप इसका डेफिनेशन तो बतलाए, लेकिन अभी माइग्रेशन वाले पोर्शन को टच आप नहीं किए हो, लग रहा कि क्यों वो ग्रोइंग डिपेंडेंस क्यों हो रहा है फीमेल का, फीमेल पे हम लोग इतना डिपेंडेंट क्यों है। तो ड्यू टू दैट ओनली, राइट। तो 1-2 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं कि पानी उनी आप लोग भी अच्छे से पी लीजिए, रिफ्रेश हो जाइए। फिर हम आते हैं, स्लाइड हम खोल देते हैं फिर से आपके लिए। अब हम जल्दी जल्दी, कितने लोग इंटरेस्टेड है स्टैटिस्टिकल में एनालिसिस करने के लिए? अगर आपके लिए नया है प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग, तो हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि स्लाइड ही कवर कर लेगा मेरा टाइम। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो से यस, देन आई विल शो यू द एनालिसिस। कि हम एनालिसिस का आपको ये बतला देते हैं कि हो क्या रहा। बेसिकली हम लोग झारखंड और बिहार में हम लोगों का अटारी है। तो हम लोग क्या किए कि जहां विकसित कृषि संकल्प अभियान हुआ उसको हम लोग कोड दिए ट्रीटमेंट 1, और जहां नहीं हुआ उसको हम लोग कोड दिए 0। और हम लोग 75 फार्मर्स लिए, और इस तरह से हम लोग 75 फार्मर्स लिए हैं झारखंड से और बिहार से, समझ गए। तो 150 फ्रॉम झारखंड, 150, जहां 75 वैसे किसान हैं जिनको विकसित कृषि संकल्प अभियान का लाभ हुआ, 75 वैसे जिनको नहीं हुआ। तो उसका इम्पैक्ट असेसमेंट हम लोग किए, तो उसको हम लोग दिखाएंगे। और बहुत पावरफुल टूल है, बहुत इजी है। और आप लोग अगर ये सब टूल सीख लेते हो तो अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे आप लोग। तो वो हम आपको दिखाने जाएंगे लास्ट 15-20 मिनट्स में। आई कैन सी मेनी। यस सर, हमको कितने मिला सर? हम से कैसे मिलेगा? हाँ, आप झारखंड से हैं तो आप जो है नियर बाय केवीकेस में जाइए, और अभी भी चल रहा है अभी सेव द फार्म कैंपेन। आप इंटरेस्ट शो कीजिए नियर बाय केवीकेस में, या डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस, कि सर आप मेरे फील्ड में आके, मेरे खेत में आके, मेरे गांव में आके आप शो कीजिए ये सेव द फार्म कैंपेन। हम इसके पार्ट होना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस और नियर बाय केवीकेस में आप अगर आप जाते हो तो आपको इसका निश्चित है लाभ मिलेगा। अगर आप झारखंड से हैं, धनबाद से, आई कैन सी मनोज कुमार यू आर फ्रॉम झारखंड एंड धनबाद। और यस इंटरेस्टेड, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड शो किए हो। लेट मी रीड फिर से। बहुत सारे यस आए हुए हैं। हमको कैसे मिलेगा? एक सेकेंड। हाउ कैन आई ज्वाइन विकसित कृषि संकल्प? Yes, sir. Students are very interested, so you can continue your lecture accordingly. Sure, ma'am. I need 1 or 2 minute break. Before that, I am just reading the thing. Sure, sir. So, I don't know from which university you are BTech Agriculture Engineering, Ankit Kumar Singh. Because we are in our university, student को हम लोग तो जरूर से जरूर ले जाते हैं फॉर एक्सपोजर। और हम तो दिखाए आप लोगों को 100 स्टूडेंट एक बार में बैठे हुए हैं, 1 टीम 1 टास्क, दे आर द एसेंशियल पार्ट। हमको कैसे मिलेगा झारखंड से, हम आपको बतला चुके हैं। यस, वेरी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल सेशन। ओके, हाउ आई कैन विकसित कृषि आई एम इंजीनियरिंग। यस, हमको कैसे मिलेगा? ओके, AKTU लखनऊ,
तो आपके यहाँ ये हो रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, यू कैन कॉल मी, यू कैन गूगल माय नेम एंड फोन नंबर इज देयर, यू कैन पर्सनली कॉल मी। आप के यूनिवर्सिटी में हो रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, बट इन ऑल द आईसीआर इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इट इज वेरी एसेंशियल एंड वी हैव टू डिलीवर इट, राइट। तो 7:20 हो गया, अब हम जल्दी जल्दी 15 मिनट्स में कुछ कुछ बतलाएंगे और 15 to 20 मिनट्स में हम लोग आपको डिमॉन्स्ट्रेशन सॉफ्टवेयर से आपको दे देंगे, राइट। तो बहुत सारे यस आ गए हैं, तो हम आपको स्लाइड से भी बतलाएंगे, राइट। तो 2 मिनट का हमको ब्रेक चाहिए। विद न्यू एनर्जी आई विल कम। यू कैन ऑल्सो हैव अ 2 मिनट्स ब्रेक। थैंक यू। Sure, sir, sure. So the students, if you are interested in publication, we are also providing publication related assistance through our publication of our Society of Biotech Education Group. Under Vital Biotech Education Group, we are also providing publication related assistance, patent related assistance, and design related assistance. Those who are interested in design filing, patent filing, you can contact Dr. Jitendra Mehta through the WhatsApp group or directly on his number. Additionally, for publication, we are also providing publication related assistance in publication in the field of life science, agriculture, forestry, and also entrepreneurship. So several other additional sections are also available. So as per your own requirement, you can directly reach us on our website. So second thing is that we are regularly organizing seminar, workshop and events. For the seminar, workshop and other events, you can also check our website and directly contact through our WhatsApp group, and please actively search the group notification because we are sharing all notification in our WhatsApp group. So after this 21 days training program, we will be organizing a conference or seminar. So detail of notification will be shared on the same, and that will be specific to agricultural sciences. So we will be focusing on allied sciences also. So if you are interested, then you can contact us. And additionally, thank you so much. I think sir has joined. Sir, please continue. Yes. Yes, we will be informing through our different channel according the availability of internship. And additionally, you can also search the website of several other university. Those are Central University and State University. And MSM is also providing training to the student. Those are from agriculture sciences. In addition to that same, our faculties are also informing. You have already attended several lectures. The faculty have already shared the internship opportunities in their institution. So you can directly contact them, and if there is any other facility, we will be sharing through the WhatsApp. Thank you so much. Sir, you can continue. Yes, ma'am. So shall I continue, ma'am? Can you listen to me? Sir, sure. You can continue because the Yes, the sir. platform was now- free, so I was sharing the details of our society Yes, and ma'am. Vital Yes, ma'am. Biotech Education Group. Yeah, time utilization is very important, and you have used it judiciously. So that means congrats to you. So now there is something called deductive and inductive reasoning or logic. डिडक्टिव क्या करते हैं कि किसी का मर्डर हुआ है तो जनरल टू स्पेसिफिक बढ़ते हैं, और एक
इंडक्टिव है स्पेसिफिक टू जनरल। तो हम जनरल था कि विकसित कृषि संकल्प अभियान क्या था, और बिहार और झारखंड में क्या हुआ, अब हम वो बतलाने जा रहे हैं। और चूंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, हमको एनालिसिस भी पार्ट थोड़ा सा दिखाना है, तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा बढ़ेंगे, 7:30 के लगभग बढ़ने चला है। ठीक है। तो अब देखो कि कोई भी चीज होता, आप लोग भी साइंटिस्ट बनोगे या ऑलरेडी साइंटिस्ट होगे, तो लगभग 1.5 करोड़ किसानों के साथ सीधा संवाद हुआ, 700 जिला में 2000 से अधिक वैज्ञानिक दलों की भागीदारी थी। सो दिस इज द लैंडमार्क और माइलस्टोन और विकसित कृषि संकल्प अभियान। और आप देखो कि अचानक ये नहीं हो गया कि 29 से है तो अचानक गए फील्ड में शुरू कर दिए। 12 मई से शुरू हो गया हर चीज, मीटिंग पे मीटिंग, होम, सॉरी, HAM मीन्स ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मीटिंग विद KVKs, ये सारा आप देखो, टाइमलाइन, डेडलाइन, सारा कुछ है। और बिहार और झारखंड का स्पेशली, और उसमें देखो कि आप मेल कितने पार्टिसिपेट किए, 54,000, फीमेल 31,000, टोटल इज 85,000, राइट। Or message delivered to the farmers, you can see that there is a huge message delivery to the farmers, shelter and water management for livestock health and improvement it is showing, and selection of suitable varieties for their districts। तो ये सारा चीज था। फार्मर्स इनोवेशन आइडेंटिफाइड अबाउट 25 इनोवेशंस को, हम आपको बोले थे ना कि बहुत सारा इनोवेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है। उसमें से एक जो इनोवेशंस है वो है, एक सेकेंड, लेट मी चेक इट, ये स्लाइड है या कोई और भी स्लाइड था, बिकॉज आई हैड हाईलाइटेड इट। ये है, सॉरी, आई हैड ओपन्ड समथिंग रॉन्ग स्लाइड, सॉरी फॉर द ग्लिच। यस, सर एक स्लाइड हम खोल रहे हैं तो उसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा है शेयर का, विकसित कृषि संकल्प, हम कहीं और लाते हैं तब में भी। कंट्रोल C, ये हम फिर से ज्वाइन करें दोबारा, डेस्कटॉप में है। अब आया। ये कभी कभी ग्लिचेस है, दीज आर कॉल्ड ग्लिचेस, कि अलग लोकेशन में फिर हम शेयर कर दिए तो फिर हो गया। क्योंकि कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस करना है, मीन्स आई हैड मीन्स हाईलाइटेड इट। सर दिख रहा है मैसेज डिलीवर्ड टू द फार्मर्स बाय टीम? हेलो, जी सर। ये मैसेज टाइटल में है, मैसेज डिलीवर्ड टू द फार्मर्स बाय टीम, जी, राइट? यस यस। ओके। टाइमली नर्सरी रेजिंग ऑफ द पेडी। आई डोंट नो अबाउट योर स्टेट मच, बट अगर आप मधुबनी बेल्ट में जाएंगे, मधुबनी इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार एंड इट इज वेरी फेमस मिथिला पेंटिंग के कारण, मिथिला रीजन, और माता सीता माता उसी रीजन की थी, जो राजा जनक और राजा का दरबार लगता था उसी रीजन में। तो वहां का ये कल्चर है, फिश इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। राइस, वो लोग राइस उगा लिए फिर मेहनत नहीं करते हैं, फिर सेकेंड क्रॉप दे डोंट थिंक। सो उसमें क्या है कि चावल और धान उनका खराब नहीं होना चाहिए। सो व्हाट दे डू, कि सपोज धान उगाए
और कोई कारण से उनका नर्सरी का जो धान है वो खराब हो गया या पेडी खराब हो गया, सो दे अगेन सीक फॉर द नर्सरी। तो कहीं से उनको बिचरा मिल जाए या नर्सरी वाला पौधा मिल जाए, प्लांटलेट्स मिल जाए, जिसको वो लोग शो कर सके, ट्रांसप्लांट कर सके। तो उनको मजदूरी भी नहीं चाहिए, वो लोग बोलते बस ये दे दीजिए। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जनरेशन मॉडल कि इन्हीं का अगर खराब हो गया, सो यू हैव एन अल्टरनेटिव एज ए नर्सरी। और ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में आप सनहैम्प और ढेंचा लगाइए। IRI रीजनल स्टेशन हमारे बगल में है, जस्ट गेट से निकलते हैं तो वो लोग पूरा ढेंचा लगाए हुए हैं, पूरा मूंग लगाए हुए हैं, पूरा सनहैम्प लगाए हुए हैं, ताकि ग्रीन मैन्योर प्लांट्स को मिल सके, नेचुरली फर्टिलाइजर उनको मिल सके, यूरिया मिल सके। लिक्विड बायो फर्टिलाइजर यूनिवर्सिटी का भी हम एक फोटोज भी दिखाएंगे कि लिक्विड बायो फर्टिलाइजर का ये ट्रेनिंग। RPCU has developed low cost biofertilizer, liquid biofertilizer production at village level। विलेज लेवल पे लो रिसोर्स से कैसे बन सकता है लिक्विड बायो फर्टिलाइजर। फिर फॉडर बैंक भी, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये सारा चीज हम लोग डील करेंगे कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। और आप ये देखो कि हम लोगों को जो ग्रास रूट लेवल पे लीची का जो इनोवेशन मिला, आई टोल्ड यू, आप लीची लाओ और इतना धूप है, अगर 1-2 दिन में ब्राउन ना हो जाए तो बोलना। और उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या है, कॉटन ड्रेंच्ड इन 5% सुक्रोज सॉल्यूशन, कि कॉटन को आप डुबा दो ऑन द स्टेक ऑफ लीची और उसको पोंछ दो, शुगर जो है उसको खराब होने से बचा लेगा। राइस स्ट्रॉ, अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, हिस्ट स्ट्रेस, अभी हम आपको बतलाएंगे जो क्रैकिंग आ रहा है, तो पौधे पौधे का जड़ में ज्यादा गर्मी नहीं पड़े क्योंकि वहीं पर वाटर है। अगर प्लांट तक जाएगा, वाटर चला जाएगा, तो क्या होगा, वो क्रैकिंग नहीं आएगा। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, राइस स्ट्रॉ। जिस पराली को हम लोग जला देते हैं पंजाब हरियाणा में, वो पराली हीट स्ट्रेस से बचाएगा मैंगो को। और आप करके देखो, वो कवर करेगा, इवोपो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, पौधे तक पानी जाएगा और फिर देन क्रैकिंग और फ्रूट ड्रॉपिंग नहीं होगा। और फिर मोहगनी से आप क्या करोगे, विंड ब्रेक्स, जो पूरा तूफान चलता है, गर्मी वाला लू चलता है, उसको, उस ऑर्चर्ड को बचाने के लिए गुआवा, मैंगो, पपाया, बनाना, फॉरेस्ट ट्रीज से आप बचा सकते हो। एंड देन अमलतास लीफ, ये ITK है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नॉलेज, उससे मैंगो और बनाना को आप पका सकते हो। आज कार्बाइड से बोलते हैं ना कि कुछ लोग आज तरबूज खाने से मर गए, कार्बाइड वाला फ्रूट्स खाने से ये हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। सो अमलतास इज वन ऑफ दैट अल्टरनेटिव। और फ्रूट फ्लाई मैंगोज में बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, उसके लिए एक इंसेक्टिसाइड है, वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड, न्यूवाक्रॉन। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ केमिकल फ्री, अगर कोई इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है तो वी विल डेफिनेटली टेल इट। यूज ऑफ सिंदूर लीफ इन पेडी फील्ड इन ब्रेन स्टोरेज। सिंदूर का लीफ, जो सिंदूर हम लोग लगाते हैं, नेचुरल सिंदूर, केमिकल वाला नहीं, उसका जो नेचुरल सिंदूर, अपने दादी और नानी से अगर आप बात करेंगे, तो सिंदूर का एक पौधा होता है, उसका अगर आप लीफ ग्रीन स्टोरेज में डाल दोगे तो डेफिनेटली कम इंसेक्ट पेस्ट अटैक करेगा। ओके। एंड फिर रिले क्रॉपिंग की हम लोग बात करते हैं, जो इनोवेशन मिला, रिले क्रॉपिंग इन मेज एंड बीटर गार्ड। फार्मर्स यूज टू ग्रो बीटर गार्ड इन अ कप एंड टाइज देम विद मेज क्रॉप। तो कप में जो है डाल दिए और वहीं पर छोटा सा जहां पर फल हुआ तो कप लगा दिए और मेज फील्ड में डाल दिए। तो इससे क्या हो जाता है, रिले क्रॉपिंग हो जाता है, मक्का कट जाएगा। और मक्का का तो ऊपर ही भूटा होता है ना, मतलब वो फल ऊपर से काट लीजिए, पौधा तो स्टैंड कर ही रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप देखोगे कि बहुत बार ऊपर से आप काट लिए, नीचे स्टैंड रहता ही है मेज का, तो वहां पर आप कप से लगा लिए। और बिहार एंड झारखंड में क्या क्या रिसर्चेबल इश्यूज आया है, विल्ट इंसिडेंट इन सीसम। सबसे, अगर बिहार में और झारखंड में किसी से आप पूछो कि सबसे मजबूत लकड़ी किसका होता है, स्ट्रॉन्ग लकड़ी, तो वो बोलेंगे शीशम। दीमक भी नहीं लगता, लेकिन उसमें विल्ट लगने के कारण आज कोई भी शीशम का कोई ऑर्चार्ड या कोई प्लांटेशन जल्दी नहीं है, स्कैटर्ड है, रैंडम है, इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहा। और इसका सॉल्यूशन 10, 20, 30 साल से नहीं निकल पाए हैं। येलो मोजाइक रेजिस्टेंट इन मूंग वेराइटी, मूंग में येलो येलो लगेगा ही, दूर से पहचान में आ जाता है मूंग का ये पौधा है। इवन सेम प्रॉब्लम इज इन मध्य प्रदेश ऑल्सो, झारखंड।
हाई मोर्टेलिटी इन पोल्ट्री, गोट एंड पिग ये पाया गया था। फिर रिपीट ब्रीडिंग हो जाता है कैटल में, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो आईवी जो फर्टिलाइजेशन करते हैं हम लोग, राइट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन पॉलिसी इशू आइडेंटिफाई, नील गाय, ये सारा चीज है, कस्टम हायरिंग सेंटर से आपको जोड़ना है। तो ये चीज है। नॉलेज एंड स्किल गैप भी बहुत बार आप लोगों को मिलता है कि उनको आइडियाज ही नहीं है। सोचो ना, भूसा कोई बड़ा चीज तो है नहीं। आप मैंगो और चाट कोई भी हीट है, और आप उसको जिसको जला देते हो, जिसको फार्मर फेंक देता है, आप उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लो और कवर कर दो, क्योंकि वो जल्दी सड़ता भी नहीं है। रिमेम्बर, सड़ता भी नहीं, और ओस सोखता है। जो सुबह का पानी है ना, ओस उसको सोख लेता है, मीन्स ड्यू को, राइट। और आप देखिए कि हम लोग का एक्रिप वुमेन इन एग्रीकल्चर है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट वुमेन इन एग्रीकल्चर, उसके हम को पीआई हैं और प्रोग्राम 2 को लीड भी कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे। और उसमें किसानों को तरल जीव उर्वरक निवारण का मिला प्रशिक्षण। सो आई वाज इंस्ट्रूमेंटल। सो हाउ टू प्रोड्यूस लो कॉस्ट बायो फर्टिलाइजर एट द फील्ड लेवल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज हम लोगों ने बतलाया। और आप देखो कि डिजिटल लिटरेसी में, आई डिड द एनालिसिस ऑफ एनएसएसओ 78th राउंड एंड आई फाउंड आउट दैट कि जो भी डिजिटल लिटरेसी इंडिकेटर है फीमेल का, राइट, उसमें बिहार की जो वुमन है 1.5 to 4.5 टाइम लेस है। और इस तरह का डेटा एनालिसिस आप लोग खुद अपने स्टेट्स का भी कर सकते हैं। एनएसएसओ का 78th राउंड का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इससे एक अच्छा पेपर और पॉपुलर आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। ऑलरेडी आई हैव डन इट फॉर बिहार। और आप देखिए कि क्लाइमेट का जो इश्यूज है, हम आपको बतलाए कि 22 के 22 जो ये हैं, क्या बोलते हैं, गर्म वाले शहर सारे कहां पर हैं? इंडियाज में हैं। और इसलिए हम क्लाइमेट रेजिलिएंट का, ये फीमेल के साथ हम सेंटर में बैठे हैं और फीमेल के साथ ये इंटरेक्शन हो रहा है कि हाउ टू कम्बेट द क्लाइमेट इश्यूज एंड चैलेंजेस। और फिर वो बोले कि सर हम लोगों को अवेयर कराइए। तो हम लोगों का जो है इसरो से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगा हुआ पीछे आप देख रहे हैं, ये एक लंबा सा इंस्ट्रूमेंट वो इसरो लगाए हैं, उसको हम लोग ये क्या कहते हैं, एवा डेली मेजरिंग, ये सारा डेटा क्लाइमेट टेम्परेचर का वहां से चला जाता। तो फीमेल को हम लोगों ने विजिट कराया और कैलिब्रेटेड पेपर कार्ड, इससे हीट का इंटेंसिटी पता चलता। जो सेकेंड डायग्राम जिसमें एक फीमेल ऊंचाई पे खड़ी है, वो देख रही है कि कैसे सूर्य का रोशनी जो है पेपर कार्ड को जला दे रहा है। और जला दे रहा है मतलब इंटेंस हीट है, तो उससे बचना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और ये पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इज वेरी एसेंशियल, और हम लोगों ने उसको दिया, आप लोग देख सकते हैं। और फिर स्टेट समरी जो हम लोग डीएसआर एंड लाइन सोइंग बिहार में हम लोग बतलाए। और हम लोगों का सीआरए प्रोग्राम भी चल रहा है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम। और हम लोगों का जो रोड मैप है, बिहार कृषि रोड मैप 1.86 लाख करोड़ का, ये पूरे हमको लग रहा है कि जितने भी स्टेट्स है इंडिया उसमें सबसे ज्यादा। और हर बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस, एपीजे अब्दुल कलाम पहला किए थे, फिर प्रणब मुखर्जी किए, अभी नेक्स्ट में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी की। और कॉम्फर्ट मॉडल, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीडिया कवरेज भी अच्छा खासा हम लोगों को मिला। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर को आप देख सकते हैं कि ये लॉन्च किए थे, और ये अलग अलग एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए, एमपीज आए, एमएलएज आए। तो ये है। अब हम की लर्निंग्स जो है वो बतला चुके हैं, और वे फॉरवर्ड बतला रहे हैं। तो अब हम आपको सॉफ्टवेयर से बतलाते हैं। सर ये स्टेटा दिख रहा है, बस अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। विद इन 10 to 20 minutes आई विल कंप्लीट इट। मैम दिख रहा है सर, दिख रहा ओके, सामने भी चलते हैं। सेम फॉर बीएससी एंड सेकंड सेमेस्टर, यस यस यस, ओके। डिजिटल एग्रीकल्चर टू मूव टू दिस कंपनी सो मच। सो हाउ मच डिजिटल एग्रीकल्चर, कोई पूछ रहे हैं अंकित कुमार सिंह। डिजिटल एग्रीकल्चर और डिजिटल लिटरेसी, अभी हम लोग जो है अलग अलग लिटरेसी की बात कर रहे थे।
फर्टिलाइजर लिटरेसी और अलग अलग लिटरेसी, एग्रीकल्चरल लिटरेसी, एआई लिटरेसी। तो डेफिनेटली डिजिटल लिटरेसी अगर रहेगा फार्म वुमन में, सो दे कैन लर्न मोर थ्रू यूट्यूब एंड अदर डिजिटल मीडिया। एआई से पूछ सकते हैं, लगातार ट्रेन कर सकते हैं उस मॉडल को। जैसे हम लोग गए थे, पॉपुलर का ट्री था एमपी में, तो जेमिनाई से पूछ रहे थे कि उस समय पत्ता सारा गिरा हुआ था, हम पूछे कि कौन सा ये ट्री है, तो ये बोलता पीपल, पीपल का पत्ता के तरह होता पॉपुलर का भी, अगर आप लोग पॉपुलर देखे होंगे, राइट। तो वो बोला कि आई डेफिनेटली, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो है पीपल है। हम बोले कि गलत है, ये पीपल नहीं हो सकता। और नजदीक से देखा तो कहता आप तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये पीपल ही है, जबकि वो था पॉपुलर। सो यू हैव टू ट्रेन द योर एआई। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर दिख रहा है आपको स्टेटा, ये पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है, कहीं भी हम पेन ड्राइव लगाए और इसको ये कर लिए। तो आप जो है इसमें हम डेटा दिखा देते हैं, फिर आपको, फिर आप, तो एक एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में जाइएगा, डेटा टू एक्सेल शीट है, और फिर एक सेकेंड, इंपोर्ट करना था मुझे, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट नहीं करना, इंपोर्ट मतलब लाना है। ब्राउज में गए, विकसित कृषि संकल्प अभियान का ये है, और लेट मी चेक कि इसमें हम किस जगह ये रखे हैं। ओके, इंटरवेंशन वाले में ही है, फर्स्ट सी। ओके, सो लेट मी ओपन द डेटा, ये फर्स्ट में ही इंपोर्ट फर्स्ट रो एज वेरिएबल नेम्स। ये इंपैक्ट असेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट टूल है, प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग। ठीक है, तो कैसे होता है ये हम आपको आज बतलाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट रो क्या है, डेटा लेबल है कि इंटरवेंशन है, राइट। और अब हम क्या कर, यहां पर जाके डेटा एडिटर में है एक, और ब्राउजर में है, तो ब्राउज करेंगे। तो आप देखो कि ये जो 1111 है, वन मतलब बिहार का डेटा है, और जहां विकसित कृषि संकल्प अभियान चला था, राइट, वन। और जीरो जो आप देख रहे हो यहां नहीं चला था, और सेकेंड में फिर से वन आ गया, 151 में देखो कि फिर से वन आ गया, ये झारखंड का डेटा है। ठीक है, तो इसी तरह झारखंड का भी 75 है, और झारखंड का फिर से 75, जहां पर विकसित कृषि संकल्प अभियान नहीं चला था, मतलब जहां इंटरवेंशन नहीं हुआ था। नाउ अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि वो इनकम बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया फार्मर्स का। तो हो सकता है इनकम कोई और कारण से भी बढ़ गया, आप समझ रहे हो ना, इनकम कोई और कारण से भी बढ़ गया। तो हम लोगों को हर एक चीज मैच कराना होगा, एजुकेशन मैच कराना होगा, एज मैच कराना होगा, एक्सपीरियंस मैच कराना होगा, फार्म साइज मैच कराना होगा, लैंड फैमिली साइज मैच कराना होगा, लैंड होल्डिंग मैच कराना होगा। क्योंकि अगर मैच नहीं कराएंगे तो दिक्कत क्या है कि पता चला कि वहां पर कोई एनजीओ काम कर लिया, या केवीके ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत काम कर रहा था, बिल एंड मेंडिला गेट्स काउंट, और वहां पर पता चला कि दूसरा इम्पैक्ट आ गया, और वहां पर इनकम बढ़ गया। तो एक साल में बाद, जो विकसित कृषि संकल्प अभियान का एक साल हो चुका है, तो एक साल बाद क्या वहां पर इम्पैक्ट पड़ा, उसका हम एक एनालिसिस करके दिखा रहे हैं। तो ये तो डेटा वाला शीट है। तो हम लोग जाएंगे, यहाँ स्टैटिस्टिक्स में है, स्टैटिस्टिक्स में है ट्रीटमेंट इफेक्ट। तो हम आपको बतलाए थे कि ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं या इंटरवेंशन दे रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या है कि एक कहते हैं ना सोशल साइंस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना मुश्किल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप इंटरवेंशन कर सकते हैं, राइट। जैसे हम लोग अभी किए हुए विकसित कृषि संकल्प अभियान का, या कम बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, कंपेन ऑन बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, और अभी जो तीसरा खेत बचाओ अभियान, मीन्स खेत बचाओ मीन्स क्या हुआ, सेव द फार्म कंपेन। तो यहाँ ट्रीटमेंट इफेक्ट में जाएंगे, और हम लोग यहाँ पर जो है बाइनरी आउटकम, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो ट्रीटमेंट हुआ, मतलब विकसित कृषि संकल्प अभियान वहां पर हुआ, फार्मर्स को हुआ है, या तो नहीं हुआ। तो बाइनरी आउटकम में प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग कराएंगे। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ट्रीटमेंट वेरिएबल जो है आपका क्या है, इंटरवेंशन।
और आउटकम वेरिएबल क्या चीज का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, इनकम बढ़ा या नहीं। और फिर वेरिएबल्स की हम लोग बात करेंगे, ले लेते हैं पांचों, 1 2 3 4 5, 5, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि एक एक करके शॉर्ट करना शुरू करेंगे कि किससे बढ़ा किसमें नहीं, और ओके बटन दाब देंगे। ये देखिए, तो ये जो पी वैल्यू है काफी हाई है, मतलब 0.815, मतलब इंपैक्ट नहीं पड़ा विकसित कृषि संकल्प अभियान का, ये पांचों वेरिएबल के साथ इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो किसके साथ पड़ा? लेट्स एक्सप्लोर मोड, हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि कैसे रिजल्ट आया, तो वो हम आपको डायरेक्ट अब करके दिखाएंगे, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है। आपको एक इंसाइट मिल गया कि क्या होता कैसे होता, फिर यू कैन लर्न मोर। आज एआई है, आज चैट जीपीटी है, जो सीखना चाहता है ना, वो बड़े बड़े एक्सपर्ट से भी ज्यादा सीख लेता है, दैट आई बेट। तो इसमें से जो है, हम फैमिली साइज और लैंड को हटा रहे हैं, और तब आप ओके करते हैं। तो देखिए, इम्पैक्ट 10% पे पड़ा है। और इसमें आप देखिए कि क्या क्या इंटरवेंशन का के साथ क्या क्या वेरिएबल है। एज, एजुकेशन, मतलब सेम। अब विकसित कृषि संकल्प अभियान का ये कोएफिशिएंट जो है, 20,163.90 रुपए ज्यादा इनकम बढ़ा है। ज्यादा इनकम है कहाँ के कंपैरिजन में? जिनको विकसित कृषि संकल्प अभियान नहीं मिला है। सोचिए, 20,000 रुपए। तो इसलिए कोई भी जो प्रोग्राम कराते हैं आईसीआर में, तो ये हम लोग दिखाते हैं कि इतना जो लाखों पर खर्च हुआ उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो आप देखिए, आपके सामने रिजल्ट है, 20,163.90 रुपए बचा। और हम लोग में चाहे एज भी ऑलमोस्ट सेम था वो किसान का, हो सकता है यंग फार्मर ज्यादा कमाते हो, नहीं, एज भी सेम था, सेम पढ़े लिखे भी थे, और सेम एक्सपीरियंस भी था। सेम एक्सपीरियंस वाले किसान, सेम पढ़े लिखे किसान, सेम एज वाले किसान को जब ट्रीटमेंट दिया गया, तो हम लोग देखे कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का जो इंपैक्ट है, ये 20,163 रुपए ज्यादा। एंड पी वैल्यू इट इज सिग्निफिकेंट एट 10% लेवल, एंड जेड वैल्यू इज 1.74। और आप देखिए कि एटीई जो एवरेज ट्रीटमेंट इफेक्ट जो है, काफी पॉजिटिव है, और आपके सामने रिजल्ट है। और ऊपर से आप देख लीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 300 है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है, अभी चूंकि पब्लिश नहीं हुआ तो हम पूरा डेटा दिखाए नहीं है, फिर भी हम करके आपको दिखा दिए। तो 300 डेटा में एनालिसिस हुआ है। 75 झारखंड से बेनिफिशियरी जिनको विकसित कृषि मिला है, जिसको 75 नहीं मिला, फिर 75 झारखंड, सॉरी बिहार, फिर 75 जिनको नहीं मिला बिहार से। तो बिहार झारखंड मिलके 150 प्लस 150 करके हम लोग चेक कर लिए। अब इस तरह से मेरा प्रेजेंटेशन आज कंप्लीट हो गया। 10 मिनट हम लोग डिस्कशन के लिए भी रखेंगे। हम अब सब चीज बंद कर रहे हैं, आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आप कुछ कुछ सीखे होंगे मेरे से। बहुत सारे तो क्वेश्चंस बीच में ही हम एड्रेस कर दिए हैं। Thank you so much, sir, for enlightening us. So, participant may post their questions in the checkbox. I think many of have already asked the queries, and there is one more query. What are the major challenges faced in the way of success of this campaign? हाँ, मेजर चैलेंजेस ये था कि बहुत गर्मी, पूरा ऐसा ऐसा जगह हम लोग किए थे, हम लोग फोटोज दिखाएंगे, फोटोज भी लिए हम लोग कैमरा से, कि पूरा वहां पर ये था, स्पाइडर वेब था, ऐसे ऐसे जगह जाके पूरा, बिजली तो दूर का बात है, गर्मी में थे। तो लेकिन ठीक है, फार्मर्स के लिए तो सेक्रीफाइस करना पड़ता। दूसरा, बहुत सारे जो हम आपको दिखाए, येलो मोजाइक वायरस अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है। हम लोगों का जो मेज का सीड है वो काफी महंगा है, प्राइवेट कंपनी पे डिपेंड है। तो आईसीआर एंड सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज टू वर्क ऑन इट। तो ये सारे चैलेंजेस थे। डिजिटल लिटरेसी करना था, तो हम आपको दिखाया कि बिहार की जो वुमन है, हर इंडिकेटर में 4.5 to 1.5 टाइम लेस है। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, आप गूगल करते करते थक जाइएगा, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। चैट जीपीटी भी आंसर नहीं दे पाएगा इसका, बिकॉज आई हैव डन दैट एनालिसिस। तो ये थे मेजर मेजर चैलेंजेस। और ये लिखे हैं अंकित कुमार, यस वी कैन लर्न अ लॉट, अभी तुरंत ही आया है। और अमित कुमार, थैंक यू सर। तो आई होप आई हैव क्वेंस्ड द थर्स्ट। और आप लोग प्रोपेंसिटी सुनिए ध्यान से, एआई जरूर सीखिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी जरूर से जरूर सीखिए, क्योंकि आप लोग इससे एक्स्ट्रा पैसा भी कमा सकते हैं,
और फ्यूचर डिमांड हाई है जो डेटा एनालिस्ट हैं। तो साथ साथ सब चीज टेक फ्रेंडली प्लस बेसिक नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और नेचुरल फार्मिंग अगर आप लोग करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोना लर्न अ लॉट, राइट। और कोई दिक्कत? ठीक है सर फिर। Thank you so much, sir, for such an informative session and with the detailed deliberation. I think it will be helpful for all the students. Thank you so much. थैंक Thank you, sir. यू। Now, I take this opportunity to express my heartfelt gratitude and propose a vote of thanks. On behalf of organizing committee and institution, I extend our sincere thanks to Dr. Sudhanand Prasad Lal, Assistant Professor cum Scientist, Officer in Charge, Agriculture Technology Information Center, Directorate of Extension Education, RPCAU, Pusa, Bihar, of its 8-day training programs, and also President AFTEF Society, Dr. Jitendra Mehta, are organizing University Rani Lakshmibai Central Agriculture University, Jhansi University of Agriculture Sciences, Raichur, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, GD Goenka University, Gurugram, Sant Girira Guru Vishwavidyalaya, and the institutions AFTEFS Society, Vital Biotech Education Group, our faculty members and experts, our technical support team, research scholar and the student, and the participants who have joined us from different parts of the countries. Your presence has made this technical session truly meaningful and memorable. With this, we conclude our 8th day of the training session of 21 days Krishi Manthan, the summer school training program. Stay connected, keep learning. Jai Hind to all. Amit Kumar Singh has asked, how can I contact you, sir? My phone number, email ID, everything is in Google. And there is only single person with my name. Google में मेरे अलावा सुधानंद प्रसाद लाल कोई दूसरा सुधानंद प्रसाद लाल नहीं है। Great, Okay. great. So मिल ही definitely जाएंगे sir. So you 100%. can go through the online medium. You can search it on Google. So you search mail ID and contact number will be available. So then you can directly contact us, sir. Thank you so much, sir, for the detailed deliberation and the information you provided to our the students. Thank you, sir. Thank you, sir.